for me. I did not have any experience of teaching. My name is Anushka Chandra. Currently, I am working at PwC. And I am Abhay Chandra, currently a second year student at IIT Bombay. आज हमारे साथ हमारे अनिल चाचा हैं और इनकी दोस्ती पापा के साथ मोर देन 40 around years 50 years. से है, तो ये काफ़ी स्पेशल मोमेंट है हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग इनको बहुत बचपन से जानते जब इतने इतने से थे, और भैया लोग को भी। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज हैं चाचा के पास आप सबको शेयर करने के लिए, और कुछ नई भी जो कि पापा ने हमें नहीं बताई। तो चाचा, पापा ने बताया था कि आपने काफ़ी प्रोफेशन को स्विच किया है, तो कैसा क्या है, प्लीज टेल। First of all, I would like to thank Anushka and Abhay to give the platform to discuss my complete lifestyle and life journey through this channel. As far as my friendship is concerned with your father, it had been a long way to come up to this juncture. करीब मुझे लगता है कि more than 40 years, 79-80, जी, if I remember, after completing my intermediate, we took the admission in a coaching for the preparation of CPMT at that time. that time Because we all were from the bio group, so our first choice was to become a doctor. सही। So we have several friends in the doctor category, and we prepared for 2 or 3 years, continued. In the meantime, many of our friends got selected. Someone in first year, others in second year, kind of third years. But unfortunately, I did not clear the CPMT examination. So I opted other professions. In the meantime, my friend Naveen, now he is Dr. Naveen Chandra, selected in CPMT in 1984. And I switched over to my banking profession. Right. Okay. First of all, when I started my career, I started my career as a medical representative. Because I had a bio background, it was much easier for me to go for that particular profession. So I started as a medical representative, but moreover I belong to a caste family, and most of the time they look for the government service. So my parents compelled me to leave that particular private job and go and prepare for the government job. Then I went for the preparation of banking services, and I got my selection in a bank in 1985. Okay. There was a board BSRB, Banking Service Recruitment Board. In 1984, I applied in that examination, and finally I got selected and joined the bank in June 1985. Okay. And my bank was the syndicate bank. Now that bank was merged with the Canara Bank Okay. later on, and it is now known as Canara Bank. Okay. तो जून 85 से हमने बैंकिंग करियर स्टार्ट किया, और इट वाज ए वेरी रिमोट प्लेस इन मेरठ, Okay. वेयर आई जॉइंड. इट वाज ए परतापुर ब्रांच, बेसिकली द इंडस्ट्रियल स्टेट ब्रांच वाज देयर. So at the age of 22, I joined the bank. एंड ये आपका होम टाउन कानपुर का था, पर आपकी फर्स्ट पोस्टिंग मेरी मेरठ में थी. ऐसे रिमोट जगह बहुत ही कम तो लोग रहते वहाँ होंगे. पे मैं गया, तो आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस. कैसे वहाँ मैं एडजस्ट करूँगा, रहूँगा, क्या करूँगा, खाना बनाना भी नहीं आता था. ठीक, और कैसे रहूँगा. Then, but over a period of time, I settled there, and I got my first transfer to Lucknow. Okay. After 3.5 years. In 1989, I come back to Lucknow. I did not get the chance to come over the Kanpur because my native place was Kanpur. Yes. So I got the nearby place from the Kanpur, that is Lucknow. And I joined Lucknow in 1989. Lucknow में जब मैं आया, then I thought of some other profession also, some other career. Because at that time I was around 26 or 27 around. I was at that time. I started my preparation for the civil services Okay. in Lucknow. आपकी चाचा तब तक शादी हो चुकी थी? No. At that time, I was a single person. और I joined a coaching there in Lucknow. Okay. For getting a complete guidance for the preparation of civil services. But unfortunately, I cleared the prelims, but could not the mains.
and it was a very setback for me at that time. I did not have a second attempt because at that time the complete age limit was up to 28 only. ओह दैट्स व्हाई हाँ जी तो केवल मेरे को एक ही अटेम्प्ट मिला। अच्छा तो उस समय मुझे थोड़ा सा एक बार सेटबैक लगा कि मैंने यार 21 साल की एज में क्यों नहीं स्टार्ट किया। किया पहले मैं कर सकता ठीक है, आई अंडरएस्टिमेटेड माई सेल्फ। सभी और उस समय आप कह सकते हो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होने की वजह से वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं भी निकाल सकता हूँ या मैं इसकी प्रिपरेशन कर कर सकता हूँ। तो आई लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। बट बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि मैं लेट हो गया इस डिसीजन को लेने में या इसकी प्रिपरेशन करना है। बट द लाइफ गोज वेल एंड I made myself continuing with the banking services. Later on, I got married when I was posted in Lucknow. ओके लखनऊ itself. I married in 1992. 1992 And और उसके बाद in 1992, I took the very drastic decisions in my life. Because as far as the banking services was concerned, मैं ये सोचता था कि मैं वहाँ पे अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और कहीं ना कहीं मुझको लगता था कि एक अपॉर्चुनिटी लॉस मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो मैं अपने को और एक्सप्लोर करूँ, चीज़ें करूँ। सो आई टुक द डिसीजन टू गो फॉर द बिजनेस, टू बिल्ड द बिजनेस, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, फैमिली हाँ to grow the family. But again, there was a thought, but not the experience. दिस इज द पॉइंट. क्योंकि मैं जिस फैमिली को बिलोंग करता था या जो उनकी बैकग्राउंड थी, वहाँ कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था जी हाँ और किसी तरीके का किसी को कोई एक्सपीरियंस भी Experience नहीं था। क्योंकि मेरे फादर भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे एंड आई वॉज द एलोन सन ऑफ माई पेरेंट्स। पेरेंट्स तो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी मेरे पास नहीं था। और दूसरा चैलेंज था कि क्या मैं जॉब में रहते रहते बिजनेस एस्टेब्लिश कर लूँ मुश्किल होता है या उतना फुल टाइम मैं उसको दे दे पाऊँगा। पाऊंगा जितना जरूरत है. बट आई स्टार्टेड एनी हाउ, और उसको मैंने किया बिकॉज राइट फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ माई इंटरेस्ट वाज टुवर्ड्स द केमिस्ट्री ऑल्सो, so I went for the chemical business. केमिकल। तो जैसे इस पॉइंट में आपको वो नहीं लग रहा था कि काफी रिस्की है? Of course, it was risky, but if you want to grow in the life, you always prepare for taking the risk. That was the question. But now what I believe, that risk has to be calculated in this. कैलकुलेटिव रिस्क. ऐसे इमोशनल रिस्क नहीं होना चाहिए। हाँ But at that time, I was not mature enough, I must say, to calculate all those risks. हाँ कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे अपना केमिकल बिजनेस के जो. So I started the trading of chemicals first of all. Later on, I switched over to manufacturing. I put an industry ओके. of the detergent powder and detergent cake, and run that industry for around more than 10 years. 10 years हाँ But I was physically dependent on so many other people because of continuation of job. I had to depend. My fellow colleagues, my supportive staff. As you know, there is a human nature. You may find some good people in the life. You may also find some fraud kind of people in your life. समझना पड़ता है कौन। But anyhow, you have to trust, because without keeping the trust, you cannot run any business. If you put doubts on each and every person, नहीं then it would be very difficult टू हैंड ओवर द वर्क टू to डिफरेंट take the work from any other person or to run any kind of business. So at this moment, some of my colleagues and partner, they did their job in a negative way अच्छा and put my factory in a loss of
huge amount. That was beyond my capacity to bear. So ultimately, I took the decision to shut down my business with a huge losses. To meet my liabilities and other debts, I had to resign from the government job also, because the losses were so high that cannot be met with the salary of government job. So I took a very drastic decision in my life at the age of 42. 42. I resigned from the government job after completing my more than 20 years of service. When I resigned, I did not know where to go. But I know my caliber. I was much assured that I will do something better in my life and will be able to tackle all my responsibilities over a period of time. Yes. Then I switched over to academics, a very new field for me. I did not have any experience of teaching. True. As far as my qualification was concerned, I was a simple graduate, Yes. did not have any professional degree, diploma or qualification with me. Correct. So in particular academic field, I also have a very limited opportunity to show my talent and potential. But somehow, I met those persons who recognized my latent potential, जो अब तक पूरा नहीं आया है। and they provided me an opportunity हाँ। in the academics. I started teaching the CA students, Okay. company secretary students, later on MBAs also, Oh. and that whole things changed my momentum Of the life completely. and the complete scenario of my life. और एकेडमिक्स के साथ साथ मैं बहुत सी गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स में, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स में, बहुत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ मैंने वर्क किया काफ़ी लोगों को, और मोर देन 50,000 कैंडिडेट्स को मैंने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी, अच्छा 50,000 particularly in the state of UP, MP, Bihar. I worked there with the government organizations and different ministries. उसी के साथ साथ फिर मैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में मेरे पास एक सिविल का थॉट था, जो पुराना सपना, जो पुराना था कि मैं उसकी प्रिपरेशन सही समय पर नहीं शुरू कर पाया। तो मैंने कानपुर शहर के अंदर एक सिविल सर्विस एकेडमी खोलने का सोचा, क्योंकि बहुत से बच्चे प्रिपरेशन कानपुर में करते हैं, और जो बच्चे करना चाह रहे होते हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है या तो दिल्ली जाएं, क्योंकि एक दिल्ली बहुत बड़ा नेशनल हब है। अगर हम बात करें सिविल सर्विस प्रिपरेशन का वहाँ पे, तो बच्चों को वहाँ पे सही तरीके की गाइडेंस मिल जाती है और रिसोर्सेज भी वहाँ पे काफ़ी अवेलेबल रहते हैं। तो मेरे माइंड में था कि बच्चों को वैसी ही पढ़ाई, वैसी ही रिसोर्सेज, वैसी ही इन्वायरमेंट मैं कानपुर में दूँ। तो एक नेशनल लेवल की कोचिंग से हमारा टाई अप हुआ और उनकी ब्रांच हमने कानपुर में खोली, स्टार्ट करी यहाँ। और मैंने अपने को लिमिटेड रखा केवल सिविल सर्विस की प्रिपरेशन। चाहता तो मैं संग में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करा सकता था, बट माय फोकस वाज टुवर्ड द सिविल सर्विस। और मैं ये भी चाहता था कि ना तो मेरा फोकस डाइवर्ट हो और मेरे पास जो स्टूडेंट्स आए उनका भी फोकस डाइवर्ट ना हो किसी और चीज़ की प्रिपरेशन के लिए। तो इस वजह से आई केप्ट माई सेल्फ रिलेटेड टू द सिविल सर्विसेज। तो इस तरीके से मैं सिविल सर्विसेज में एक बार फिर वापस आई गया करीब 30 साल के बाद ये बोला जाता मैं है लौट के आया। चाचा इट्स अ फुल सर्कल, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे दुनिया थे बहुत वहीं छोटी पे। है, गोल है, घूम के वहीं आती है, यहाँ पे दिल्ली को छोड़ के जाते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं सिविल सर्विसेज में वापस आया और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया
कि वहाँ पे आके वो प्रिपरेशन करें और एक अच्छी प्रिपरेशन करें। यहाँ स्पेशली मैं सिविल सर्विसेज की बात अगर कर रहा हूँ तो कुछ मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये चीज़ कहना चाहता हूँ मैं पर्टिकुलरली, कि मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में एक बार सिलेक्शन हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बच्चों को सिविल सर्विसेज का सिलेबस अच्छी तरीके से तैयार जरूर करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि यूपीएससी ने जिस तरीके से सिविल सर्विसेज का सिलेबस तैयार किया है, बनाया है, डिजाइन किया है हिंदुस्तान में सिविल सर्विस को सिलेक्ट करने के लिए, वो बहुत मार्वलस है। मार्वलस किस सेंस में? मार्वलस इन द सेंस कि अगर हम बात करें कि अगर हम और अदर प्रोफेशंस की बात करें, अगर मेडिकल प्रोफेशन की बात करें या हम इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात करें या पर्टिकुलर एमबीए प्रोफेशन की बात करें, सीए या कंपनी सेक्रेटरीज की बात करें, इन तमाम प्रोफेशंस के अंदर हम बात करते हैं तो ये बड़े स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं। यहाँ पे बच्चे कुछ टॉपिक्स में या कुछ सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्टीज मतलब चाहिए इनको, एक्सपर्टीज होती है इनकी। मेडिकल के अंदर अपनी एक्सपर्टीज है, इंजीनियरिंग के अंदर अपनी एक्सपर्टीज है, मैनेजमेंट के अंदर, अकाउंट्स के अंदर अपनी एक्सपर्टीज है, लॉ के अंदर अपनी एक्सपर्टीज है। बट एज फॉर एज द सिविल सर्विसेज आर कंसर्न, ये बहुत जनरलाइजेशन है। यहाँ पे हमें स्पेशलाइज्ड लोग नहीं चाहिए, यहाँ हमें जनरलाइज्ड लोग चाहिए। हर जगह अपना, और कहा गया है जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, और ये पूरी की पूरी कहावत जो है वो सिविल सर्वेंट पे लागू होती है। क्योंकि एक सिविल सर्विसेज की जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसको इतनी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के थ्रू जाना पड़ता है जो शायद स्टूडेंट लाइफ में कभी कभी वो उन सब्जेक्ट से हिट कर रहा होता है। क्या मैं हिस्ट्री कैसे पढ़ूंगा, मैं ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रही है, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन यार क्या करना है लाइफ के अंदर, ठीक है, इकोनॉमिक्स से मेरे को क्या मतलब, पापा पैसे दे ही रहे हैं, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ही है ना, सोसाइटी से मुझे क्या लेना देना है, सोसाइटी को समझ के ठीक है यार, रिश्तेदार दोस्त यार हैं हमारे यहाँ पे, आज सोशल मीडिया है उससे सोसाइटी को समझ ठीक है, तो शायद एक दूरी रहती है बच्चों की उन डिफरेंट टॉपिक से, है ना, क्योंकि उनको कभी लगता नहीं है ये सारे टॉपिक उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं या उसको कोई एडवांटेज देने वाले हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज एक वो जगह है जहाँ पे यही टॉपिक काम आते हैं, क्योंकि एक ऐसी फील्ड है जहाँ हमें लोगों के बीच और लोगों के साथ काम करना होता है। सही बात। और अगर जब तक हम लोगों को नहीं समझ रहे होंगे तब तक कुछ नहीं। अगर वहाँ की भौगोलिक स्थिति नहीं समझ में आती है, अगर वहाँ का इतिहास हमको नहीं पता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था हमको नहीं पता है, वहाँ सामाजिक दायरा कैसा है, सोशल स्टेटा कैसे हैं, वहाँ पे क्या टैबूज हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, वो अगर हमको नहीं पता है, और मोर ओवर अगर भारत का संविधान ही हमें नहीं पता है जिसके तहत हमें काम करना है, तो फिर तो शायद एक सिविल सर्वेंट के लिए एक चैलेंज हो जाएगा उस नौकरी में जाना। जी सही कह रहे हैं। और केवल इसकी पढ़ाई यहाँ तक नहीं सीमित है, इसके सामने बहुत से चैलेंजेस हैं जहाँ पे हम एथिक्स की बात करते हैं, क्योंकि डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में जहाँ सोसाइटी में इतना इंटरेक्शंस रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारा एजेंडर्स पॉलिटिकल भी होता है, उसको भी फेस करना पड़ता है, तो वहाँ पे एथिकल वैल्यूज बहुत मीनिंगफुल हो जाते हैं, क्योंकि आपके डिसीजन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सोसाइटी को इन्वॉल्व करते हैं और उनके ऊपर उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने मार्वलस शब्द का प्रयोग केवल इसीलिए किया कि वो जो इतना वर्सेटाइल सिलेबस डिजाइन किया गया है कि वो जब बच्चे उसकी तैयारी करते हैं, उसको डीप थॉट के थ्रू पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनको लाइफ का परसेप्शन ही चेंज हो जाता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, वो एक ही चीज को कई डायमेंशंस में समझना शुरू कर पाते हैं, और किसी भी टॉपिक को या किसी भी सीन को वो वाइडर स्कैनर पे स्कैन कर पाता है, वरना सिर्फ एक ही रास्ते से तो उनका डायमेंशंस जो है लाइफ का देखने का बढ़ जाता है, डिसीजन देखने की वर्सेटिलिटी जो है उनके अंदर काफी हद तक डेवलप हो जाती है। और ये केवल उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बेनिफिट नहीं होता, आगे की लाइफ के उस बच्चे की लाइफ के लिए भी, रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए भी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ के लिए भी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी के लिए भी, फैमिली को समझने के लिए भी पूरी लाइफ काम करता है। सही कह रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, वहाँ के प्रिपरेशन उद्देश्य यही बच्चा शुरू करता है कि हमें इसका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जैसे कि बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर होता है कि बहुत से बच्चे बैठते हैं, कुछ का ही सिलेक्शन होता है, उसी तरीके से सिविल के अंदर भी बहुत से बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, है ना, लेकिन फाइनली जितनी वैकेंसीज होती हैं उसी के हिसाब से रेशियो से ही बच्चों का सिलेक्शन वहाँ पे भी होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा एक बार उसके गो थ्रू होता है और बहुत सिंसियरिटी से अगर उसने उसकी पढ़ाई करी है,
तो उसको जिंदगी में बहुत कुछ करने का मौका मिल जाता है और वो समझता है कि लाइफ केवल यहीं पे एंड नहीं होती है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आई कैन डू मच बेटर थिंग्स इन माई लाइफ। तो वो जो अपॉर्चुनिटी लॉस उसको लग रहा होता है, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कई गुना मल्टीपल टाइम्स उसके सामने आ रही होती है मिलने के लिए, ये डिपेंड करता है। और एक वो पर्सनैलिटी ग्रूम होती है बच्चे के अंदर की वहाँ पे, और जो बच्चा करने के बाद ही जा सकता है। तो इट इज नॉट ए टीचिंग काइंड ऑफ थिंग, इट इज मोर ऑफ एक्सपीरियंसिंग थिंग। जितना हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे, इट इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। उसको लगेगा कि शायद ये वो जगह थी या ये वो प्रिपरेशन थी जहाँ मैंने अपने फुल पोटेंशियल को, ठीक है, इस्तेमाल करा, ठीक है, और उस चीज़ को मैं आगे अपनी लाइफ को कैरी करता तो चाचा जैसे